Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 5th, that is human capital formation in Indian economic development, we were discussing about importance of human capital formation, in which first importance of human capital formation was effective use of physical capital. The growth and productivity of physical capital depends upon human capital formation. Skills of human help in effective utilization of physical capital. Second, higher productivity and production. Human capital formation raises the production and productivity as knowledgeable and skilled worker makes better use of all resources. Invention and innovation and technological improvement. Education provides knowledge to understand changes in the society and scientific advancement which facilitate invention and innovation. Fourth one, modernization of attitude. Economic development of a country depends upon attitude if people toward development. Investment in human capital help in changing mental outlook and promotes development of economy. Fifth one, it increases life expectancy as formation of human capital lead to good education and health facility enable the people to live healthy and long life. This in turns add quality of life. Sixth one, it improves quality of life. Human capital formation transform the quality of life of the people. The quality of life depend upon education, research and training. And the last one, control of population growth. It has been noticed that educated persons have smaller families in comparison to illiterate families. So education spread is necessary to control growth of population. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about problems of human capital formation, जिसमें हम वेरियस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, दूसरा सीरियस इनएफिशिएंसीज, तीसरा ब्रेन ड्रेन, चौथा हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पांचवा लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, छठा वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द लास्ट वन सेवरल इम्बैलेंसेस. तो चलिए डिस्कस करते हैं हम पहली प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो जो कि है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं. The resources allocated to the formation of human capital have been much less than the resources required. तो जो भी resources हमने allocate किए हैं human capital formation के लिए वो जितनी उन्हें ज़रूरत है उतने से कम है. यानी कि जैसे अगर हमें अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, अच्छी एजुकेशन के लिए नंबर ऑफ़ स्कूल्स होने चाहिए पर्याप्त, और अच्छी हेल्थ के लिए नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स पर्याप्त होने चाहिए. बट अगर हमारे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल जितने हमें चाहिए, मान लीजिए अगर हमें नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल चाहिए 40 और वहाँ पे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल है 10, या मान लीजिए अगर हमें नंबर ऑफ़ स्कूल्स चाहिए 40 और नंबर ऑफ़ स्कूल्स है वहाँ पे 10, तो कहने का मतलब क्या है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम है. तो इसके कारण आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो सकता. तो ये पहली प्रॉब्लम है आपकी इनसफिशिएंट रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी सीरियस इनसफिशिएंसीज. So there is lot of wastage of society's resources as capabilities of educated people are either not made use in case of unemployment or are underutilized in case of underemployment. तो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ यानी कि अक्षमता देखी गई है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि बहुत से रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी के प्रॉपर यूज़ ही नहीं किए जाते. जैसे कि बहुत से लोग एजुकेटेड होते हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट,
या फिर अगर कहीं पे जॉब में लगे हुए भी हैं तो उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, हम देख सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में। तो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज देखी जाती है, रिसोर्सेज का एक तरीके से टोटल वेस्टेज यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रेन ड्रेन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज विच लीड टू लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है और जो हमारे ह्यूमंस हैं वो स्किल्ड हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक तरह से फिर उन्हें अगर यहाँ अच्छी जॉब नहीं मिलती तो वो विदेश चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और जब वो विदेश चले जाते हैं तो हम बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीएस इन सब को लूज़ कर देते हैं और यही कहलाता है आपका ब्रेन ड्रेन। तो यही आपकी एक प्रॉब्लम है तीसरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। दूसरा है यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो अगर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे भी इम्पेक्ट पड़ता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज पहले ही स्केर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और अब पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे में होता है तो ये एडवर्सली अफेक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस ग्रोथ को कंट्रोल करें। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। देयर इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज, स्पेशली in case of highly skilled personnel thus lead to wastage of resources। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। तो जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, हमने उनको प्रॉपरली प्लान नहीं किया है कि कैसे उनका यूटिलाइजेशन या उनका यूज़ करना है। हमेशा उनकी डिमांड और सप्लाई में, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड एंड सप्लाई में एक तरीके से इम्बैलेंस रहता है और स्पेशली ये हाईली स्किल्ड पर्सोनल के केस में ज़्यादा देखा जाता है। हाईली स्किल्ड पर्सोनल जैसे आपके स्किल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके केस में ज़्यादा देखा जाता है। उस जगह में हमारे जो मैन पावर है उनका प्रॉपर हमने प्लान नहीं किया है। द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज़ रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब जब हम इनको प्रॉपर यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीके से हमारे रिसोर्स का क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। अब वेस्टेज भी दो सेंस में होता है, कुछ तो वो होते हैं जो हमारे देश से जाके बाहर रहने लगते हैं, ब्रेन ड्रेन जो हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़े लिखे जो हमारे ही देश में रह जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ता है, ऋषि देश में बेरोजगार वो रह जाते हैं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस is particularly unsatisfactory in field of science development of modern technology। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीक परफॉर्मेंस होने के कारण भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखें हम, द परफॉर्मेंस इज़ पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्ट्री। जो परफॉर्मेंस है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो एक तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री है इन फील्ड ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इन द लास्ट वन, सेवरल इम्बैलेंसेस। तो और भी कई इम्बैलेंसेस हैं, जैसे कि a greater proportion of resources have been diverted toward higher education which is mean for few people as compared to primary and secondary। तो और भी कई imbalances देखे जाते हैं हमारी इकनॉमी में, जैसे कि जो भी आप एजुकेशन में खर्चा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट ज़्यादा जो पैसा है वो हायर एजुकेशन पे लगाती है। अब हायर एजुकेशन में पैसा ज़्यादा लगाया जाता है तो हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले क्या हैं, बहुत ही रेयर स्टूडेंट है। हालांकि उनको पहले पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहिए दैट शुड बी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो पुअर भी अफोर्ड कर पाएँ। तो इन्होंने हायर एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा लगा लिया। दैट मीन्स हायर एजुकेशन तो केवल रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं या वो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं जिन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी ली है। तो पहले जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और हायर एजुकेशन में बाद में डाइवर्ट किया जाना चाहिए। और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं
वो हमारे हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वट एवर द रिसोर्सेज वी हैव, पहले हमें उन्हें प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, लेटर उसके बाद जो भी है आपके हायर एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा। सो पहले हमने आज देखा प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो पहला इसमें था इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उनकी सफिशिएंसी नहीं थी, जिसके वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दूसरा था सीरियस इनइफेक्टिवनेस। तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है हमारे यहाँ रिसोर्सेज का, एजुकेटेड पीपल्स का, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा हमने देखा था कि ब्रेन ड्रेन, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एक तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी यहाँ से एजुकेट होके डॉक्टर होते हैं, यहाँ से एजुकेट होके जाते हैं और बाहर अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे भी ह्यूमन कैपिटल आपकी इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। तो प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं की जाती है देश में, जिसके कारण जो हमारे हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे एक तरीके से वेस्ट हो रहे हैं। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण भी हमें की प्रॉब्लम भी हमें हमारी इकनॉमी में फेस करनी पड़। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन सेवरल अदर इम्बैलेंसेस। इसमें आपका हायर एजुकेशन और वो हायर एजुकेशन पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दैट शुड बी डाइवर्टेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी को पहले मजबूत बनाना चाहिए, उसके बाद हायर में फोकस करना चाहिए। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।